तो gentlemen, वेलकम बैक। कैन यू हेयर मी? काइंडली मुझे थोड़ा फीडबैक दे दें, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? क्योंकि हम दोबारा इस अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। यस सर पहुंच रही बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। एंड आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस के मतलब थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैंने उसको कैमरा को ऑफ किया। आई थिंक दैट इंटरप्शन वाज ड्यू टू दैट, तो इसलिए इसको मैंने ऑफ किया और अब ये स्मूथली चल रही है। सुजित मैन, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम जो है वो वेलकम करेंगे अपने एस्टीम्ड स्पीकर्स मिस्टर मोहम्मद शफीक। मिस्टर मोहम्मद शफीक सर, आप आर यू देयर इन द फोरम? आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं? अगर हैं तो काइंडली आप अपना माइक ओपन करें और अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो वैल्यूएबल इनपुट है, उससे इस फोरम को आगाह करें, एक अवेयरनेस दें। सर सर वेलकम। सर मिस्टर मोहम्मद शफीक। Yes, sir. Am I वेलकम। audible, sir? Yes, yes, you are audible, sir. Okay, thank you. Thank you so very much. Okay, I was just looking at the names on the screen. Most of the people are from Pakistan. So, my greeting, my evening salam to all of you. Um, it's good. Some technological issues are there. So, sir, today I'm here only to appreciate your effort. PSC is doing marvelous job, and I would like to share a few of my experiences because, as you know, I've got extensive traveling experience. So, few of keynote speakers were also, mentioning some sort of, environment in the external world. So, what I have gathered from the keynote speakers. So obviously, we need a lot of things, and a lot of room is there to improvise. So when we go into some comparison, so we embrace a lot of frustration. So I would just here share a few of my experiences while during my quite recent traveling. Uh, but before that, what I would quote, I would say that safety is emerging, and like we can uh, basically divide it into various different segments because the scenarios in the developed world is different, and if we see developing countries, that is a bit different, and the underdeveloped countries are different way. So I came across certain events quite recently. So I would like to share that in the time to come, and this expression. So am I clear? My voice is okay? Yes, yes, If sir, so, please go yeah, ahead. okay. Your voice is very much Yes, clear. yes, go on, sir. Okay, thank Yeah, you and if very you much. want to share some presentation, you are okay to that as well. And if you want Honestly, to, not. So I've tried, but I'm okay, unable right now because uh, technological issues. right, Technological sir, no issues. issue. Please If you continue can your receive my thoughts. voice, Thank you. that yeah. Okay, Yes, thank you very much. Can you see the video? No, yeah, yeah. yes, yours. Now, yes, Ah, we can see you, sir. Thank you. yeah. Thank you very much. Thank you, thank you. So, sir, basically, these days, as you know, we are having, a special consultative status with ECOSOC, United Nations as well. So, safety field is very much focused. And I was just looking at the SDGs, Sustainable Development Goals of United Nations, and obviously, all the people around here, present in this, you know, discussion, they are aware of the Agenda 2030. So most countries
are working quite rapidly on that, and in particular because we are whenever we look at the someone has opened the mic, so kindly, to hear me clear, you'll have to turn off your mic. Thank you very much. Um, okay, so Agenda 2030 is very much in focus these days. So I was just obviously we have day-to-day interaction with that. So four areas are there which have directly connection with the employment, say for example, poverty reduction and industry and mitigation in terms of that hunger and all that. So the word basically is very much focused on safe environment and safe environment at different levels. Say, let's see if it's a social level, or it's at a workplace, anywhere, wherever we are, like in industries, or in agriculture and production, or whatever, wherever we go, we see the dire need of safety sort of things. So when we see it, when we compare it with our situation with the rest of the world, so we see a big gap. So I must say here, because I have switched after listening to different speakers. This is what I feel it aptly necessary to share it. That we Pakistan is a part of the world which is lacking far behind. If we see the safety standards that are observed there in our nearest countries, like UAE in particular, they have borrowed, I must straight away say that, borrowed safety standards from the West, but they have implemented those standards quite profound manner, that now the Western world, they are looking at them, that how these people are applying those standards. So there are, say, let's say, there are skyscrapers. I must say there is jungle of sky-rise buildings, but they manage those, right from the very beginning till the end. Till the end, I mean, from the time they start, the construction, then the further development, and then managing that, and they they take things the way that they have, honestly, they have astonished the Western world. And but that we are somewhere, we are lacking things in most of the areas, and that is because of the maybe because we are not producing within our country the stuff which can contribute like impactful manner. Like, so in this regard, what PSC is putting in efforts, those are marvelous and appreciable, because we need to enhance safety education inside. We need produce a flock, like we need to enhance the awareness and among the institutions, among the policymakers, uh, prior to if we have to compete the world, we have to strengthen things within our country.
one of the speaker was, focusing on the communication skills. Obviously, no doubt, when our safety officers, our safety staff, when they when they come in the line where people are, the professionals are there from other countries, we see a huge gap. Uh, uh, be it knowledge base or like it's like expression, communication or whatever. So there is particularly in GCC, there is it's a mixed market for working environment, and where we see professionals from our neighboring countries like India, Bangladesh, Sri Lanka, then obviously from the Western world as well. So we observe that Pakistani professionals, Pakistani workforce, occur to be deficient at workplace. So to mitigate this, where we cannot compete with the workforce of the Western other countries, our competitors in particular, it won't be possible for us to like capture, like the as you might have heard that the market and the GCC like part, the GCC that is already shrinked, that is squeezed. This is the major reason that Pakistani So nice of you, sir. workforce. Grateful. Your thoughts are very valuable. And in chart, if we say that there's a huge perspective for employment for this safety specialist, safety professional, but it is conditional to the requirements of the new time. That is the training, education, awareness, qualification, because the competition is high, the market is Yeah, expanding, true. the market is spreading. So we are grateful to you for your valuable, very extensive thought on this very, very important topic. And once again, I say thankful to you. I'm thankful to you from on behalf of Pakistan Safety Council. I'm grateful, sir. Thank you very much for your time. Now, I want to So give this mic to my next speaker. So, Mr. Dr. okay. Mohammed Quresh. Shah Mohammed Quresh Okay, sir, thank you. Sahab, are Thank you you. available Thank you. in this forum? So kindly you can speak up, Mr. Mohammed Shah Quresh. And if that colleague is not with us, then we can move to the next participant. That is Dr. Jalaluddin Sheikh. Dr. Abid Jalaluddin Sheikh, sir, if you are available, kindly take on the mic and share your valuable thought with us. No? Okay. So if you allow me, then I invite to my next distinguished guest, Mr. Mr. Umar Fiaz. Mr. Umar Fiaz, are you with us in this forum? Mr. Umar Fiaz, are you available in this forum so that you can share your thoughts with the this distinguished forum, connecting from different parts of the worlds and even locally, internationally? No, okay. So, Mr. Wasim Khan, are you there with us? Mr. Wasim Khan, can you hear me? Are you with us in this forum to share your thoughts, to share your knowledge with us? Mr. Wasim Khan, can this forum hear me? I doubt कि मेरा शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही. Kindly confirm कीजिएगा मुझे मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? Anyone out आवाज of आ you? रही Okay. आवाज आ रही जी आवाज आ रही है सर आवाज That's great. Thank you very much. So all of you who responded. So I think there may be some problem at their side. Those participants, those speakers who wanted to join us on this forum, but unfortunately
due to some reasons, maybe some mostly students are Pakistan can be used. अच्छा, चले ठीक है जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप लोग। लोग यहाँ पे फीडबैक आ रहा है जी कि उर्दू में बात करें, बहुत अच्छी बात है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इसके ऊपर हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए और इसी को ही मीडियम कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहिए। इट्स आई एम इन फेवर ऑफ दिस। तो बाकी जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट करना था, जिनके मैंने अभी नाम पुकारे हैं, अगर उनमें से कोई अवेलेबल है तो काइंडली आप माइक जो है अपने ओपन कर लें और उस अपनी जो है वो थॉट से हमें शेयर करें अपने वैल्यूएबल थॉट्स। मिस्टर मोहम्मद कुरैश साहब, मिस्टर वसीम खान, मिस्टर उमर फयाज एंड मिस्टर डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख। तो ये लोग अभी तक मेरा ख्याल है ये ज्वाइन नहीं कर पाए, मुझे कोई इनकी तरफ से फीडबैक भी रिसीव नहीं हुआ। While everyone is talking about HS individual way, which is also efficient, but sir today operation challenge. चले, so nice of you, all of you. अगर मैं 1 या 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, अगर कोई हमारा जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो स्पीकर्स हैं, अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। उस इन द मीन टाइम, इस टाइम के दौरान में हम अपनी तीसरी एक्टिविटी कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका मोटिवेशन लेवल भी आ जाए और थोड़ी मतलब है कि पार्टिसिपेशन भी हो जाए। ठीक है जी, तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन इन द मीन वाइल के बाकी लोग आए तो हम अगर कोई इनमें से आ जाता है तो हम इंशाल्लाह ताला अपना कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज हम जो है वो शेयर स्क्रीन प्रॉब्लम कर जाता है ऑप्शन मेरे पास। Gentlemen, I hope you can see the new screen. This one is the third question. Again, for this, इस सवाल के लिए भी, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए सरप्राइज है। एम्बेसडरशिप की ऑफर है पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की तरफ से। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देंगे और जो पहले 5 पार्टिसिपेंट होंगे, जो नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मिस्टर उमर है वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करते हैं इस सारी एक्टिविटीज को, और उन तक जब आपके रिस्पॉन्सेज पहुंचेंगे वो उनको फिर वैलिडेट करेंगे एंड देन मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और आपको आपकी ईमेल के ऊपर आपके सरप्राइज जो है वो मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following organization has PSC formed strategic partnership with? क्योंकि ये ओपनिंग में जो हमारे ओपनिंग रिमार्क्स थे, जिन लोगों ने इसको अटेंड किया है उनको पता होगा कि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये उन्हीं में से क्वेश्चन है कि जो हमारी पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ है स्पेशली, लेकिन जो सिंध में, कराची में, पाकिस्तान में जो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के साथ है, इनमें ऑप्शंस है आपके पास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या रेस्क्यू 1122 के साथ है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, या यूनाइटेड नेशन के साथ है। इसका आंसर आपने करना है ऑप्शन ए बी सी डी में से, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको ठीक लगता है, उसको आप 03100077713 पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें अपनी ईमेल के साथ, और वहाँ पे ये सारा डेटा कलेक्ट होगा एंड देन यू विल हैविंग अ सरप्राइज इन योर ईमेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं और हम जो है वो दोबारा अपनी कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। सो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सॉरी नंबर सर, एक मैं बार डिस्टर्ब शेयर कर रहा हूँ कीजिएगा। आपको। वसीम खान साहब अवेलेबल हैं, उनसे प्लीज आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए। श्योर 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 जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिस्टर वसीम खान, कैन यू हेयर मी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मिस्टर वसीम खान? सर ये नंबर जो है ना, ये प्लीज रिपीट कर दें, ये नंबर आप दोबारा रिपीट कर दें सर। जी जरूर, मैं रिपीट कर देता हूँ।
0 3 1 फिर 0 0 फिर 777 और 13 0 3 1 0 777 13 मैं मैसेज में भी आपको सेंड कर देता हूँ, ठहरे मैं आपको मैसेज में भी चैट में सेंड कर देता हूँ सबको नंबर, ठीक है। 0 3 1 चलो जी, ये चैट में भी मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया है, और आप इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो मिस्टर वसीम खान इज आवर सर नेक्स्ट डिस्टिंग्विश्ड। क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 का तो टाइम गुजर गया भाई आपका। अब ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका तो चले इसका मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं? 1 नहीं, 1 तो नहीं अभी बताया जा सकता ना, वो तो टाइम गुजर गया ना, सॉरी। अच्छा चले आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वसीम खान। अभी मैं उनकी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा और फिर आप उनसे मतलब अपना वो उनकी जो भी बातचीत है वो सुन सकते हैं इंशाल्लाह। सो लेट मी शेयर हिज स्क्रीन। जी मिस्टर वसीम खान, अगर आप आवाज सुन पा रहे जी हैं तो काइंडली आप कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी ला यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच PSC फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और काफ़ी सीजनल सेफ्टी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑनलाइन PSC ने हमें प्रोवाइड की, जिसमें कि इतने सीनियर लोग एक एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने अपने इजहार का ख्याल कर सकते हैं, इजहार ख्याल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरा जो टॉपिक है उसमें हम ISO 45001 की सर्टिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे। जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने बात की कि जी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी एक बड़ी वास्ट फील्ड है जिसमें के अंदर फायर सेफ्टी से लेकर और लीगल कंप्लाइंस, हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लाइंस, कमिटमेंट, पॉलिसी, इंसिडेंट मैनेजमेंट, हैज़ॉप एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सेफ्टी के अंदर आती हैं। तो बहुत सारी ब्रांचेज है इसमें। इसी चीजों को इसी को एक सिस्टमेटिक वे में लाने का नाम जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम है। और मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको सिस्टमेटिक वे में अगर हम देखें तो वो एक सिस्टम बन जाता है और उस तमाम एक्टिविटीज को सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत हम डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, देन उसका ऑडिट होता है। अच्छा, इसमें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होती है। जिस तरह सबको पता है कि ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये 1947 में डेवलप हुआ था, इसका वजूद हुआ था। और उसके बाद से ये एक इदारा है जो दुनिया भर में मोर देन 180 कंट्रीज में इस्टेब्लिश है। और इसके पाकिस्तान में भी इसका पिन एक इदारा है जो कि इसको देख रहा होता है। और इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ISO सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं जो कि IAS या IAF या यूकास की सर्टिफिकेशन दे रही होती हैं। ये एक्रेडिटेशन बॉडीज होती हैं, IAS, IAF और यूकास। तो तो जो पाकिस्तान में जैसे फॉर एग्जांपल SGS है या ब्यूरो वेरिटास है या URS है या TUV है, ये सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। और पिनेक जो है वो एक्रेडिटेशन बॉडीज है। तो सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है वो एक्रेडिटेशन बॉडीज के साथ मुंसलिक होती हैं, उनसे उनका ऑडिट वो करते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता है। जब आपने जी प्लीज आगे चलते हैं। जी प्लीज। ISO हम क्यों लें? क्योंकि हमें सिस्टम को डेवलप करना होता है, कॉन्फिडेंस लेना होता है। और हर चीज रिटर्न डॉक्यूमेंट की सूरत में होती है। जब चीज डॉक्यूमेंट की सूरत में होती है तो डेफिनेटली इस पे इम्प्लीमेंटेशन आसान होती है और अकाउंटेबिलिटी आती है। जब तक कि सिस्टम डिफाइन ना कर दें हम, उसको अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आ सकती। तो जिस तरह हमारे इस्लाम में भी है कि हम कहते हैं कि सजा और जजा का कानून, तो सजा और जजा का कानून बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो लोग हैं फिर वो किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट इसी तरह सेफ्टी में भी है, इसी तरह से हमारे इस्लाम में भी है।
तो लोगों को हमें अकाउंटेबल भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, अथॉरिटीज देनी है, एंड इनको अकाउंटेबल करना है और रिवार्ड भी देना है। ये जो सिस्टम है ये बेस करता है टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स पे। और टीक्यूएम यही कहता है कि पहले आपने कस्टमर फोकस होकर काम करना है, कस्टमर को हमें प्रायोरिटी देनी है। कस्टमर हमारे इंटरनल कस्टमर भी हैं। आप सबको पता है कि आईएसओ की जो पहली क्लॉज है 4.1, उसमें वो ये बात करता है कि इश्यूज एंड कंसर्न अपने आप इनलिस्ट करें, देन फिर आप इंटरेस्टेड पार्टीज को करें। और पहले था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते थे हम, अब हम बात करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज की सेटिस्फेक्शन की। और इंटरेस्टेड पार्टीज में मैनेजमेंट भी है और एम्प्लॉयज भी हैं, नेबर्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, लीगल बॉडीज भी हैं। ये सारे लोग हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। तो इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को लिखना है और उनकी उनको सेटिस्फाई करना है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे का कस्टमर है, तो हमें उसको सेटिस्फाई करना है। इसी तरह से लीडरशिप, कोई भी सिस्टम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट ना हो। टॉप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आप हमारे एचएससी के प्रोफेशनल हैं, एचएससी के लोग हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, एचएससी ऑपरेशन मैनेजर है, दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल। अगर वो खुद सेफ्टी हेलमेट पहन के नहीं जाते साइट्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे या प्लांट पे, तो वो किसी तरह से नहीं कह सकते कि जी आपने सेफ्टी का इस्तेमाल करना है या पीपी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी वो कमिटमेंट करनी होगी कि जी हमें डिमोस्ट्रेट करनी है कमिटमेंट। ये नहीं कि जी हमें बहुत पॉलिसी बना दी सेफ्टी फर्स्ट। आपने देखा होगा कि आज से पहले मेरा ख्याल है कि हम सब मेरा ख्याल है कि 20 साल हमें इस फील्ड में हो गया हमें, तो हम देखते थे कि सेफ्टी फर्स्ट का एक स्लोगन लगा होता था। तो सेफ्टी सिर्फ लिखने से बोलने से नहीं होगी। सेफ्टी फर्स्ट को हमें कमिट करना होगा। इसको इसमें रिसोर्सेज देने होंगे। रिसोर्सेज के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, टाइम, हर चीज की रिसोर्सेज आएंगी। जितनी जितनी हम कमिटमेंट शो करेंगे, हम डिमोस्ट्रेट करेंगे, मैनेजमेंट रिव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरनल ऑडिट में करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, जितनी ट्रेनिंग में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसी तरह से हमारा सिस्टम इंप्रूव होता जाएगा। और जो स्टैंडर्ड है ये इसी की बात करता है कि जितना भी हमारा सिस्टम है वो पीडीसीए बेस है। डॉक्टर डॉमिंग जो हमारे क्वालिटी गुरु थे 50s के, उनका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्लान करो, डू करो, चेक करो और एक्ट करो। हम अपनी चीजों को अच्छी तरह से प्लान करें, देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स होते हैं उसको फिर मॉनिटरिंग करें, मेजर करें और चेक करें, देन फिर रिएक्ट करें, रिएक्ट करें या एक्शन दोबारा उसको लें। तो ये एक कंटिन्यूअल साइकिल है, इसमें हमें चीजों को इंप्रूव करना होता है। जब हम बात करते हैं अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, तो हमें अपने प्रोसेसेस को समझना होगा। जितने भी एक्टिविटीज हमारे ऑपरेशंस में हो रही है, प्लांट में हो रही है, चाहे वो जहां पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो प्रोसेसेस हैं। तो हम हमारे हिसाब से जो 7M है उसमें मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मेथड्स है, मेजरमेंट्स है, मदर नेचर है एंड मोरल है। अगर किसी भी जगह पे इनमें से कहीं पे भी कोई फॉल्ट होगा, कहीं पे भी कमी बेशी होगी, तो उसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि हमारा प्रोसेस स्मूथ हो जाए। जब हमारा प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा तो हमारी जो चीजें हैं वो भी इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे कि आपको सबको पता है कि ये आईएसओ की सर्टिफिकेशन सिस्टम सर्टिफिकेशन होती है, ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नहीं होती। अगर लोग लिखते हैं कि जी ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है या आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट या आईएसओ अपने प्रोडक्ट पे, तो वो गलत इंटरप्रेट इसकी हो जाती है। तो हमें इसमें भी मुताद रहना चाहिए कि हम इसका लोगो कहाँ यूज कर रहे हैं, इसकी सर्टिफिकेशन कहाँ पे कर रहे हैं, मार्केटिंग किस जगह पे कर रहे हैं, स्टेशनरी में हम कर रहे हैं। ये भी एक क्रिटिकल चीज है। तो अपनी सिस्टम की सर्टिफिकेशन होती है। सिस्टम हमारा उस वक्त सही होगा जब हमारे ये 7M सही होंगे, और एक वक्त ये आएगा कि हमारी चीजें इंप्रूव करती जाएंगी। हमने बात की कि प्लान करो, डू करो, चेक करो और एक्ट करो। यस। अगर हम एक गो थ्रू करें एक स्टैंडर्ड को, बेसिकली हमने बात की ना जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी सिस्टमेटिक वे में आ रही हैं, और इस इन तमाम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो चीज फिट इन होती हैं। हमने बात की कि जी हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कोर है वो रिस्क असेसमेंट है। हमने बात की कि फायर रिस्क असेसमेंट करनी है, हमने हमने जो है वो लीगल कंप्लाइंस करना है। तो वो तमाम चीजें यहाँ पे आती हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें के फॉर एग्जाम्पल कोई ब्यूटी पार्लर है और वो सर्टिफाइड है, और एक जो है वो एंग्रो या मल्टीनेशनल कोई एमएनसी है जो केस आईएसओ सर्टिफाइड है, तो उसमें फर्क क्या है? तो उसमें जो मेन फर्क होता है ना वो यही होता है कि वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो, इसमें क्लॉज है लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि लीगल एंड अदर्स। तो अगर कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई मिठाई वाला है, उसको दे डोंट नीड
अदर रिक्वायरमेंट्स, उनके पास कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स भी शायद ना हो और ना ही कोई अदर रिक्वायरमेंट हो, बट जो एमएनसी होगी उस पे अपनी कॉर्पोरेट की गाइडलाइंस, उस पे एनएफपीए के स्टैंडर्ड्स, अगर आप अभी हमारी बात कर रहे थे एनएफपीए की, तो डेफिनेटली डिजाइन फेज पे हमें चीजों को देखने की जरूरत है और सिस्टम को इस तरह बनाएं, जितना अच्छा हम सिस्टम बनाते जाएंगे इतनी डिटेल सिस्टम बनता जाएगा। और सिर्फ हम अगर आईएसओ को इस तरह से देख लें कि यहाँ पे इसको 2 फाइलें रखी हुई हो आईएसओ की, ऑडिटर को पता चल जाता है कि यहाँ पे आईएसओ इंप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ आईएसओ की फाइल बनी हुई है, यानी कि आईएसओ के मैंडेटरी प्रोसीजर बने हुए हैं, इंटरनल ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट भी हो गया, बट इंटीग्रेशन नहीं हुई प्रोसेसेस से, ऑपरेशन से। तो आईएसओ ये डिमांड करता है हमारे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो इंटीग्रेट हो। तो अगर हम एक नजर डालें तो क्लॉज 4, 5, 6, 7 ये प्लानिंग में आती है, देन डू में 8 आती है, देन मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट की क्लॉज 9 में आती है, देन एक्ट में एक्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट या नॉन कन्फर्मेंस वाली क्लॉज है। नेक्स्ट, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन पे जाना है, तो सर्टिफिकेशन करने से पहले हमें लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी होगी, एक डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेटली मैनुअल्स, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें बनती हैं। मैनुअल को अब मैंडेटरी नहीं किया गया है, बट लोग इसके अभी भी बनाते हैं, क्योंकि जितना अच्छा सिस्टम आप बनाएंगे, जितनी डिटेल में चीजें करेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चीजें बेहतर कर रहे होंगे। तो मैनुअल बनते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम जिसमें आपके प्रोसेसेस होते हैं कि हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम पीएफडी अलग भी बन सकता है और ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी बन सकता है। ऑर्गोनोग्राम, ऑर्गोनोग्राम जो ना चेन ऑफ कमांड को शो करता है कि किसकी रिपोर्टिंग किसको है। तो एक टी बॉय है या हाउसकीपिंग वाला है या गार्डनिंग वाला है, सिक्योरिटी वाला है, उसको भी हमें अपने ऑर्गोनोग्राम के अंदर शो करना होगा। नाम ना लिखें, बेहतर होता है कि हम उसको पोजीशन वाइज लिखें, ताकि अगर बंदा चेंज भी होता है तो वो ऑर्गोनोग्राम वैलिड रहे। और उस ऑर्गोनोग्राम का हर एक पोजीशन की जेडी भी होनी चाहिए। उस जेडी में एचएससी की एस्पेक्ट्स, क्वालिटी के एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए कि जी इस पोजीशन के लिए जो ये पोजीशन है इसकी कंपिटेंसी क्या होगी। कंपिटेंसी का मतलब उसकी कैट यानी कि नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एंड देन उसने कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं। अगर उसने प्लांट ऑपरेशन करना है तो पहले आया ऑर्गोनोग्राम, देन जेडी, एंड देन एसओपीस। एसओपीस में लिखा होगा कि जी प्लांट ऑपरेशन किस तरह से करने हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होंगी। और वर्क इंस्ट्रक्शंस एंड एसओपीस ये कॉमन, एक सेम ही तरह की चीज होती है। इंस्ट्रक्शन थोड़ा पुराना वर्ड है जिसको हम मशीनों पे लगाते थे पहले, वर्क इंस्ट्रक्शन लगा दें। अब जो है उसको हम प्रोसीजर या एसओपी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गोनोग्राम बना दिया हमने, पॉलिसी बनाई। पॉलिसीज जो है ना वो एक भी हो सकती है और अलग अलग, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ड्राइविंग, इस तरह की पॉलिसीज भी हो सकती हैं, बट ये इंटेंशन होती है टॉप मैनेजमेंट की कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। मैंडेटरी प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि इंटरनल ऑडिट, नॉन कंफॉर्मेंस, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, डॉक्यूमेंट डेटा कंट्रोल। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑपरेशंस आपके हैं उसकी कोर एक्टिविटीज को हमें एसओपी बनानी होती हैं। क्वालिटी प्लान, प्लान के अंदर होता है कि किस स्टेप में क्या क्या हमारे कंट्रोल्स होंगे। जॉब डिस्क्रिप्शंस बनती हैं, फॉर्मेट्स बनते हैं, और जो फिजिकल गैप्स होते हैं उसको हमें पूरा करना होता है कि जी जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे रिस्क असेसमेंट की इंप्लीमेंटेशन है या उसका एक्शन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। हमने बात की कि जी जब हमने स्टैंडर्ड लेना है सर्टिफिकेशन का, तो उसमें अवेयरनेस कर, लोगों को अवेयरनेस देंगे, कमिटमेंट लेंगे टॉप मैनेजमेंट से, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने ही लोगों को स्पेयर भी करना है, ट्रेनिंग के लिए भी स्पेयर करना है, सिस्टम के लिए भी स्पेयर करना है। अदरवाइज ये कोई भी सिस्टम, चाहे वो ईआरपी का सॉफ्टवेयर हो, कोई कोई लैब सर्टिफिकेशन हो, एक्रेडिटेशन हो, कोई भी सिस्टम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि टॉप मैनेजमेंट ट्रू सेंस में कमिटमेंट शो ना करे। देन आपने गैप असेसमेंट परफॉर्म करना है। गैप असेसमेंट के बाद प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद आपने ट्रेनिंग देनी है अपने लोगों को, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन इंटरनल ऑडिट करेंगे, देन मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे। मैनेजमेंट रिव्यू के बाद सर्टिफिकेशन ऑडिट के लिए अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेशन ऑडिट अप्लाई करेंगे तो आप उसमें स्टेज 1 ऑडिट होता है और इसके बाद स्टेज 2 ऑडिट होता है।
स्टेज 2 जो है वो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साइज के लिहाज से उसकी मेंडेज की कैलकुलेशन होती है। और मेंडेज का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल कि अगर एक कैलकुलेशन चार्ट है इसका, और हर सीवी का वेरी भी कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं तो वो कहते हैं कि जी 3 मेंडेज का ऑडिट होगा। तो ये भी हो सकता है कि 3 लोग एक दिन के लिए आ जाए, या एक बंदा एक ऑडिटर 3 दिन का आपके यहाँ आके ऑडिट करे। और उसने जो आपका सिस्टम, उसका मेन क्राइटेरिया लीगल रिक्वायरमेंट होता है। उसका मेन क्राइटेरिया ISO 45001 की क्लॉजेज होती हैं। और 415,000 की क्लॉजेज के अगेंस्ट ही वो तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ आगे जाएगा। और जो आपके अपने स्टैंडर्ड बने हुए होंगे, जो ओन स्टैंडर्ड्स होंगे, उसके अगेंस्ट जो चीजें होंगी SOPs, उसका कंप्लायंस चेक करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड यही कहता है कि जो आप कह रहे हैं वो लिख दें, और जो लिखा है उसके मुताबिक चीजें इंप्लीमेंट करें। इसमें वही बात करते हैं हम कि ISO 45,000 सबको पता होगा कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। इससे पहले आईसो ओसास 18,001 का स्टैंडर्ड था। ओसास 18 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज 18,001, जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है। और ISO 45,001 2018 का वर्जन अभी अप्लाई हो रहा है, और इसमें सिंक्रोनाइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 5.2 की पॉलिसी है, तो वो क्वालिटी की 9,001 के अंदर भी वही पॉलिसी बनेगी। एनवायरनमेंट के अंदर 14,001 के अंदर ही बनेगी, हेल्थ एंड सेफ्टी में भी बनेगी, फूड सेफ्टी और दूसरे स्टैंडर्ड में भी इसी तरह से बनेगी। ठीक है जी। ये वही क्लॉजेज हैं। इसमें 0 से स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, देन 10 इंप्रूवमेंट में जाता है। और लेकिन जो क्लॉजेज हैं वो 4 से लेकर 10 तक क्लॉजेज हैं इसके अंदर। 4 जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, देन 5 लीडरशिप, 6 प्लानिंग सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, एंड देन इम्प्रूवमेंट। इस पे हमने बात कर ली कि स्टेज 1 एडुकेसी ऑडिट होता है, देन प्री सर्टिफिकेशन ऑडिट। और हर साल साइकिल होता है। समटाइम ये 6 मंथली साइकिल होता है, एंड देन समटाइम ये एनुअल भी होता है। तो सर्विलेंस ऑडिट्स उसके लिहाज से होते हैं। ठीक है। एक्रेडिटेशन बॉडी, जिस तरह हमने बात की कि पिनेक पिनेक होती है, ये आपकी एक्रेडिटेशन बॉडी है। और सर्टिफिकेशन बॉडी आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करती है। जी, इस पे बात हमने कर ली। जी, ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक ओवरव्यू था सर्टिफिकेशन का के हवाले से। और इसमें अगर कोई भी सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम। और इंशाल्लाह इसको फिर हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। और एक अच्छी चीज़ है, मेरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मंथ में एक दफ़ा ऐसा हम सेशन कर लें जिसमें बहुत सारे सीनियर लोग किसी भी एक टॉपिक पे ओपन डिस्कशन करें और लर्न करें एक दूसरे से। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब। आपने बड़ी थॉरो नॉलेज दिया हमें इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ISO के जो हैं। एंड आई नो दैट दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेबल एंड प्रैक्टिस्ड स्टैंडर्ड। इनकी जो वैल्यू है वो एक प्रोफेशनल ही समझ सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, because we have to face multiple activities on our workplaces. तो अब अगर उन वर्क एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो आपस में, तो उनका आपस में क्लैश होगा। और जब क्लैश होगा तो हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, मतलब कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन तक भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ना, बेसिकली ये हमारी उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको उनको सिग्नाइजेशन करते हैं। मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं हम, मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपकी सजेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, मैं इसको सेकंड करूंगा कि इस फोरम के ऊपर भी मैं मतलब चाहूंगा कि लोग इसको थोड़ा सा नोटिस करें इन चीज़ों को। और मैनेजमेंट सिस्टम्स को, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें फेस करनी पड़ती है, लाइक ओवर जो हम एशियन कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कि हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली ना तो इस्टेब्लिश हुए हैं, और ना ही हमने उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन में अपनी कोई सीरियसनेस शो की है। तो ऑब्वियसली जब हम पहली स्टेज यानी उसको इस्टेब्लिश करने की तरफ ही नहीं ज्यादा जाते, तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी हम फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब थर्ड से स्टेज आती है हमारी मेंटेनेंस की, थ्रू ऑडिटिंग उसको,
तो वो तो हम बिल्कुल ही उसके ऊपर फिर फोकस नहीं करते। हमारा ज्यादा जंक इस चीज के ऊपर होता है कि कॉपी पेस्ट, वहां से मटेरियल लिया, वहां से मटेरियल लिया, वहां से मटेरियल लिया, और मतलब है कि उसको हमने एक गुलदस्ता बना के ऑडिटर के सामने रख दिया। फिर जब ऑडिटर्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनल, दे नो दैट व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू चेक। जब वो चेक करते हैं चीजों को, तो फिर बहुत सारी उसके अंदर उनको नॉन कन्फॉर्मिटीज जो है दे हैव टू डिग आउट। और फिर हम लोग थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली उसमें फेलियर होते हैं, और हम अंडर डेवलप्ड हैं इसी वजह से। मैं जो इन चीज़ों में अभी तक इतनी वैल्यूएबल, मतलब माशाल्लाह ये एक गैदरिंग हुई है जिसमें हमारे बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी अपनी थॉट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। नूरानी साहब ने जो एक मतलब अप्रोच दी है कि हमें मतलब सेफ्टी को ट्रेडिशनल वे से थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए, वी हैव टू गो स्टेप फॉरवर्ड, कि हमें सेफ्टी इंजीनियरिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, हमें डिज़ाइन लेवल के ऊपर सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे ये आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे एनएफपीए के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, दे हैव ए लॉट ऑफ बिग बैकग्राउंड, मतलब इनके पीछे एक थॉरो रिसर्च होती है, मल्टीपल कंट्रीज का डेटा होता है, एनालिसिस होती है, आफ्टर दैट दे डेवलप दी स्टैंडर्ड्स। मतलब बड़ी अर्करेजी के बाद ये जेम्स तैयार होते हैं। तो इनको हमें जरूर जो है ना अपने अगर हम अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने नेशनल लेवल पे इसको कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें इन मैनेजमेंट सिस्टम से जरूर इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, और इनके ऊपर पूरी एफर्ट करनी चाहिए, और रिलीजियसली करनी चाहिए, जस्ट नॉट टू गेट द सर्टिफिकेट पीस ऑफ पेपर, दैट्स नॉट ए बिग डील। कि आजकल तो मतलब आप किसी भी अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में अच्छा सा अच्छा सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, आप उसके ऊपर खूबसूरत डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट क्या आपके नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए काफी है? आई थिंक टिल द टाइम यू डू नॉट हैव एक्चुअल नॉलेज, वो सर्टिफिकेट कभी भी आपको अकोमोडेट नहीं करेगा, प्रूफ नहीं करेगा, बट यू हैव टू प्रूफ दैट यू यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट सर्टिफिकेट। सो नाइस ऑफ यू जेंटलमैन, आप लोगों ने बड़ा अच्छा मतलब अपना थॉट्स जो है वो शेयर किए हैं, और आई एम ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब मैं ये चेक करता हूँ, देखता हूँ कि जो हमारे तीन गेस्ट जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पार्टिसिपेट अभी तक नहीं कर पाए। अगर उनमें से कोई अवेलेबल है तो काइंडली कम ऑन टू द स्टेज एंड हैव अ माइक एंड शेयर योर थॉट्स। अदरवाइज हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर चलते हैं, ताकि आप लोग भी फिर थोड़े रिलैक्स हो जाएं, और जो नॉलेज हमने एक दूसरे से सीखा है इसको हम कंसोलिडेट भी कर सके। सो अस्सलाम। जी, जी मोहम्मद, अच्छा ओ मोहम्मद उमर फयाज, यस जी मोहम्मद उमर जी फयाज, आप आपको वेलकम है, आप आगे हैं, तो काइंडली आप बताइए, आप हमें अपने जो ख्यालात हैं उनका इज़हार कीजिए काइंडली। जी एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर वेरी वेल ऑडिबल। ओके, मेरा सेशन 8:50 पे ही था, तो आई होप कि मैं लेट नहीं हुआ। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो सॉरी, मैं एक्चुअली मेरा ख्याल है वो जो पहले हमारे साथी थे ना, वो उनकी टाइमिंग थोड़ी अर्ली थी, तो वो मैं भी थोड़ा नहीं, कोई कंफ्यूज हो इशू, गया। कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो टॉपिक है वो है होलिस्टिक अप्रोचेस टू सेफ्टी इंश्योरिंग पब्लिक डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड रोड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। ये एक जनरल सी प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं सेफ्टी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स कवर करूँगा। मुझसे पहले जो हमारे ऑनरेबल सीनियर्स आपको लेक्चर दे चुके हैं, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक और डिटेल्ड लेक्चर्स दिए हैं, और बहुत अच्छी तरह ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो ऑडिट के लिहाज से हो या चाहे वो फायर सेफ्टी के लिहाज से हो। तो ये प्रेजेंटेशन है, मैं इसको कोशिश किया कि मैं थोड़ा जनरल एस्पेक्ट से आपको पाकिस्तान में ओवरऑल एक सेफ्टी की अप्रोच के बारे में बताऊं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, और न्यूमरस मेरी सर्टिफिकेशंस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिविल डिफेंस पाकिस्तान से मैं सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें, आप प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे ज़रूर फॉलो करें, या कांटेक्ट करना हो किसी ने कोई भी चीज़ पूछनी हो।
सेफ्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि मैं ये आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में जो एक एटीट्यूड क्या है सेफ्टी की तरफ, हम सेफ्टी को बहुत लाइट लेते हैं, इसको हम अननेसेसरी समझते हैं। तो सर ट्रेवर का एक ये कोट है जो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, ये बहुत ही फेमस है कि इफ़ यू थिंक कि सेफ्टी इज एक्सपेंसिव ट्राई हैविंग एन एक्सीडेंट। कि अगर आप सेफ्टी के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपना इक्विपमेंट नहीं रखेंगे, लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे, और फिर एक्सीडेंट्स होंगे, और फिर उस दिन आपको रियलाइज होगा कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। जनरली आपने ये यही देखा होगा कि इस एटीट्यूड के पीछे लोगों की जो है वो एक लिमिटेड अवेयरनेस एक बहुत बड़ी रीजन है। और हमारी जो अप्रोच है वो हमेशा रिएक्टिव रहती है। अब मतलब कोई चीज़ हो जाती है, फिर हम उसको देखते हैं और उसके बाद हम प्लान करना स्टार्ट करते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा थोड़ा माइंड सेट चेंज होना चाहिए, प्रिवेंटिव माइंड सेट की तरफ जाना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे मुल्क में एक्सीडेंट्स होते हैं या जो हादसात होते हैं, जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जाती हैं तो ये चीज़ देखी गई है कि उनमें से एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, मोर देन 90%, वो इजीली अवॉइडेबल थी। वो जो लॉस हुआ, चाहे इंजरी हुई या फाइनेंशियल लॉस हुआ या इन एक्सट्रीम केस प्रेशियस ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते थे। इसी में ये जो इस पिक्चर में मैं आपको मॉडल शो किया पब्लिक सेफ्टी के लिए, ये वही है जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शेयर किया है। और उनके पीछे यही जो एक सोच चल रही है कि आप इस तरह की चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, या जब वो हो जाए तो उसको मिटिगेट करते हैं, उसका असर कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ इवेंचुअली डिपेंडेंट है आपकी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपके पास नॉलेज है कि अगर कुछ हो जाए तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है? आजकल एक मैंने जो अच्छा इनिशिएटिव देखा है कि आजकल तकरीबन जितने भी बड़े स्कूल्स हैं वो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में ना ड्रिल्स करवाते हैं। तो बच्चों को ये समझाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आपने इवैक्यूएट कैसे करना है। आपने एकदम सारों ने भागना नहीं शुरू कर देना, आपने एक ऑर्डरली फैशन में मूव करना है। और इस तरह आप अपने आप को भी सिक्योर करेंगे और अपने साथी को भी सिक्योर करेंगे। अपनी चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी नहीं है, आप बस अपने आप को बचाएं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जितनी ज़्यादा इम्पार्ट की जाएंगी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जितना अच्छा आप प्रिपेयर्ड होंगे उतना ही अच्छा आपका रिस्पांस आएगा। और जब रिस्पांस आपका अच्छा होगा तो रिकवरी में आपका टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए जो हमने सोल्यूशन मैंने पॉइंट आउट किए हैं कि कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, इस तरह के लोकल अथॉरिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एनजीओज को इन्वॉल्व करके ये मैक्सिमम बेनिफिशियल रहेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के ऊपर नॉलेज होगा और वो उनको थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी कि हमने इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है, उतना ही वो इस तरह अच्छा काम करेंगे जब कोई खुदा ना खास्ता इस तरह हादसा आता है या कोई प्रॉब्लम होता है। डोमेस्टिक सेफ्टी अगेन, हम अगर अपने घरों की बात करें तो ये काफ़ी सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इनकी रेटिंग्स होती हैं। और हर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हर जगह पे आप नहीं उसको ऑपरेट कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो इलेक्ट्रिक आपकी फायर है उसके लिए आपको एक डिफरेंट क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने पड़ेगा। और वो एक्सटिंग्विशर जो है वो गैस की फायर के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता। आजकल जो विंटर सीजन भी चल रहा है पाकिस्तान में, और एक जो कॉमन चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं वो लोग कंप्रेसर्स यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि ये अनसेफ होता है। आपको नहीं आइडिया कि पीछे से गैस का प्रेशर क्या आ रहा है। और समटाइम्स एक दो हादसा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसेंट मंथ में हुए हैं कि पीछे से प्रेशर आ रहा होता है और वो कंप्रेसर भी साथ में चल रहा होता है, कॉन्सिक्वेंटली धमाका हो जाता है। तो अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जो टोटली प्रिवेंटेबल है। और वायरिंग की भी मैं समझता हूँ कि जैसे इसमें भी लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि आप स्विचेस को ऑन ना छोड़ें, उनको गीले हाथों से टच मत करें। आप केयरफुल रहेंगे, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं आप देखें आप अननेसेसरी सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस ऑफ करके जाएं। और अगर आपका कोई स्विच जो है वो फॉर सम रीज़न फॉल्ट करता है तो आप उसको फ़ौरन रिप्लेस करें। अपनी जितनी भी घर की अप्लायंसेस हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस करें। और लास्टली ये कि अपनी फैमिली को इमरजेंसी की सूरत में एजुकेट करें
कि उन्होंने किन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। लाइक उनको फायर ब्रिगेड का नंबर पता होना चाहिए कि हमने फायर ब्रिगेड को कैसे कॉल करना है। और ये जो हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल डिफेंस, एनडीएमए और मेट डिपार्टमेंट, ये अपनी वेबसाइट्स पे लोगों के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में रिकमेंडेशंस लिखते रहते हैं कि इस मौसम में आपको क्या करना चाहिए या इस सीजन में आपको क्या करना चाहिए। तो उनको भी देखते रहना चाहिए ताकि आप उस सारी चीज से अवेयर रहें। अब मैं सेफ्टी लॉज के ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान में जो हमारे सेफ्टी के ऊपर कोई भी जी सॉरी सर, हम यस किसी आई भी थिंक वो देखिए किसी का माइक ओपन था इसलिए शायद वो बीच में आ रहा। नहीं आप नहीं, प्लीज कोई इशू नहीं, कंटिन्यू कोई करें। इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सेफ्टी को आप सिर्फ टीच नहीं करना होता। जैसे कोई भी हमारे मुल्क में लॉ, एट द एंड ऑफ द डे उस लॉ की इन्फोर्समेंट भी होना ज़रूरी है। और जितना अच्छा लॉ होगा उतनी ही बेहतर तरीके से उसकी इन्फोर्समेंट हो सकेगी। हमारे मुल्क में 3 मेजर लॉज या पॉलिसीज हैं जो सेफ्टी को कवर करती हैं। तो आए इनको वन बाय वन देखते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है। ये प्राइमरीली इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अप्लाई होता है और सेफ्टी को कंसर्न्स को एड्रेस करता है जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी मेजर्स चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो या हैजर्डस प्रोसेस से रिलेटेड हो उनको कवर किया जाए। और फिर एडिक्वेट वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉयज़ के लिए भी रखता है। जुरिस्डिक्शन इसकी फेडरल लेवल पे, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंसेस को भी इसकी पावर दी गई है। इसका जो इशू है वो ये है कि ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन बहुत ही आउटडेटेड हो गई है। आई मीन 1934 में इसको बनाया गया था एट दैट पॉइंट। तो अब इसमें बड़ी सीरियस किस्म की रिविजन्स की ज़रूरत है कि वक्त के साथ साथ जो अब हम इंडस्ट्री जिस तरह एक्सपैंड की है, जो अब मशीनरी यूज़ हो रही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड इसमें ये चीज़ देखी गई है कि हमारे पाकिस्तान में सेफ्टी के क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स बहुत कम हैं। इन मोस्ट केसेस सेफ्टी के ऑडिट्स होते भी नहीं है, जहाँ पे होते हैं तो वो लाइक एक फॉर्मेलिटी होती है। तो जब तक आपके पास क्वालिफाइड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स नहीं होंगे वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकते कि किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में क्या वाकई में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं या नहीं हो रही। और इनका इम्पैक्ट यही है कि क्योंकि हमें नज़र आता है कि नॉन कंप्लायंस है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली हमें अक्सर इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट आती रही है। नीचे इसी स्लाइड पे मैंने जो एक मेजर इंसिडेंट को रिपोर्ट किया वो बल्दिया फैक्ट्री फायर है। इसमें बहुत ही पाकिस्तान का ये सिंगल मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें ओवर 250 वर्कर्स की लॉस ऑफ लाइफ हुई। और इसकी जो डिटेल रिपोर्ट आई थी उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन थी कि जो इनिशियल एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत इजीली प्रिवेंटेबल था। लेकिन ना तो फैक्ट्री के अंदर कोई इवैक्यूएशन रूट्स तय किए गए थे, ना किसी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड किया गया था, और ना लोगों को पता था कि हमने कहाँ से एग्जिट होना है, हमने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए स्टार्क रिमाइंडर है कि जो हमारी इंडस्ट्री, जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की, तो आई बिलीव सेफ्टी में भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। सेकंड, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, ये रोड्स और व्हीकल रेगुलेशंस के लिए बनाया गया था। 65 में इम्फसाइज करता है कि आप सारे ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, और इसी के अंदर जो है वो पेनल्टीज वायलेशंस के लिए भी शामिल है कि सिग्नल ले रहा चीज़ की है। किस चीज़ के अगेंस्ट कितनी वायलेशन होगी। और इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो मेनली प्रोविंशियल ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस करती है। इन द करंट एज इसमें देखा गया है कि जो पेनल्टीज हैं उनको थोड़ा सख्त करने की ज़रूरत है। अगर हम पेनल्टीज को लाइट ही रखेंगे तो ये लोग इसी तरह वायलेट करते रहेंगे। और सेकंड ये कि हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। हमारी रोड्स की क्वालिटी एक बड़े लेवल पे वो पुअर है, जिसकी वजह से ये इश्यूज जो है वो और ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फर्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसमें मैं आपको पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं इससे हम सालाना 3 to 5% जीडीपी का हमें लॉस हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट $9 बिलियन हमारी जीडीपी से एनुअली निकल रहा है इन एक्सीडेंट्स की वजह से।
इसके अलावा WHO की एक रिपोर्ट है 2021 की, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारा एक्सीडेंट रेट है वो 11.9 है। इसका मतलब ये है कि साल में पाकिस्तान में तकरीबन 29,000 लोग जो हैं वो एट रिस्क होते हैं कि उनकी डेथ हो जाएगी, और ये दुनिया के एक हाईएस्ट नंबर्स में से आता है। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क में जो ट्रैफिक के कवानीन हैं इनको कितनी हमें ज़रूरत है इनको अपडेट करने की, इस पे सख्ती करने की, क्योंकि इसको लोग बहुत लाइट लेते हैं। और नीचे मैंने एक ये 2023 का वाकया मेंशन किया है कि एक ऑयल टैंकर वो हाईवे पे उलट गया था, और फिर लोग वहाँ पे जमा हो गए उसके फ्यूल कलेक्ट करने के लिए, और उस टैंकर ने फिर आग पकड़ ली, और अनफॉर्चुनेटली 200 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान खो बैठे। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे मिलता जुलता वाकया पहले भी हो चुका है, लेकिन ये ट्रेजेडी शो करता है कि हमारा जो है सेफ्टी से रिलेटेड हमारे व्यूज कितने लाइट हैं। अ, ये एक लॉ नहीं है बल्कि एक पॉलिसीज मिली थी 2013 में और 2014 में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज। ये भी एक जनरल पॉलिसी थी जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद मेनली सिंध और पंजाब प्रोविंस ने इंट्रोड्यूस की थी, ताकि वो एक जनरल लेवल पे सेफ्टी कंसर्न्स को और वर्कर सेफ्टी को तमाम इंडस्ट्रीज में एड्रेस करें। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने सेफ्टी ट्रेनिंग्स और ऑडिट दोनों के लिए एडवोकेट किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि पॉलिसी के अंदर के ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगेन जो इसके एक चैलेंजेस थे वो यही थे कि इसकी अडॉप्शन लिमिटेड रही। पॉलिसी तो अच्छी थी, लेकिन इस पॉलिसी की अडॉप्शन उस लेवल पे नज़र नहीं आई जिस पे हो सकती थी। और ये चीज़ देखी गई है कि दोनों सूबे जो हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इस तरफ लगाते कि इसकी इन्फोर्समेंट को भी इंश्योर करते। और लास्टली ये है कि जो वर्कर्स हमारे हैं उनके पास भी इनसफिशिएंट अवेयरनेस थी कि ये पॉलिसी क्या कहती है, या उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो, या उनको अपने ड्यूटीज़ के बारे में पता हो कि उन्होंने क्या क्या करना है। इसमें जो रिपोर्ट्स हैं में एक पब एमडीसी, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक थिंक टैंक है, उसने ये मेंशन किया अपनी रीसेंट रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो 75% एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो दो मेजर इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो जितने ही पाकिस्तान में इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं वो उसमें 75% इन दो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। तो स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ज़्यादा मेंशन होता है कि इसमें तो बिल्कुल ही सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता। और पंजाब और सिंध के हवाले से अगेन मैं दो चीज़ों को मेंशन करता चलूँ, दोनों की एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सेटअप है, लेकिन हर साल अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं वो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से उनकी हेल्थ डैमेज होती है। या तो उनको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनका डेवलप हो जाता है, या उनको स्किन इरिटेशंस होती हैं, और इवन इन रेयर केसेस फिर ये भी होता है कि बहुत सीरियस किस्म के लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। एंड अगेन इसमें फार्मर्स को इतनी एजुकेशन नहीं है कि हमने अपनी जो क्रॉप है उसके ऊपर पेस्टिसाइड कितना यूज़ करना है। वो जितनी उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे काफ़ी ज़्यादा वो पेस्टिसाइड यूज़ करें, एक तो ये भी रीज़न है। और सेकंड ये भी है कि उनके पास ना तो कोई मास्क वगैरह होता है, और ना उनको पता है कि ये चीज़ कितनी डेंजरस है और उनके लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेकंड मैंने हीट स्ट्रेस मेंशन किया है। ये भी पंजाब के साउथ में और कराची में काफ़ी रिसेंट टाइम्स में केसेस देखे गए हैं कि हीट स्ट्रोक्स की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जून जुलाई अगस्त ये मंथ इन पर्टिकुलर अक्सर इसमें जो है ये हीट वेव्स आती हैं, और लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इसमें भी लोगों को जो है एक फैक्टर क्लाइमेट चेंज भी है, क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और हमें इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अपने लिए और अपने लोगों के लिए। अब रिकमेंडेशंस क्या है इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए? तो मेजर तो ये है कि जब तक हम अपने लॉज नहीं इम्प्रूव करेंगे तब तक इन्फोर्समेंट बेहतर नहीं होगी, और जब तक इन्फोर्समेंट हम बेहतर नहीं करेंगे तो तब तक ऑन ग्राउंड सेफ्टी की सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसके लिए चार मेजर मेरे नज़दीक जो हैं वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम बेहतर कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें पॉलिसी को हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है, स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट। काफ़ी सारे जो हमारे लॉज हैं उनमें फ़र्क आ रहा है कि फेडरल में और लॉ होता है,
एक प्रोविंस में और है, दूसरे प्रोविंस में और है। तो इसमें कोई थोड़ा सा बैलेंस लेकर आए कि सारे मिलके कोई एक कॉमन ग्राउंड ढूंढे और कोई, ताकि वो हर जगह एप्लीकेबल हो। इससे ये होगा कि लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और जो लोग फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रन कर रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड ये कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें, अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट करें। इसमें मैं पाइड का बताना चलूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइड की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर हमें $1 का लॉस होता है किसी से इंजरी वर्कर की इंडस्ट्री में से, तो उसकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो $3 to $5 होती है, क्योंकि एट द एंड वही कॉस्ट प्रोडक्शन में जाती है या और वो डिलीवरी में जाती है, सप्लाई चेन में जाती है, और फिर $3 to $5 पर इंजरी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये क्लियरली शो करते हैं कि अगर आप, हर कंपनी अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि वो जो सेफ्टी में इन्वेस्ट कर रही है वो ज़रूरी है, इन द लॉन्ग रन वो आपको ही फायदा देगी। वो केस स्टडीज से सीखे, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या ग्लोबल लेवल के हैं। एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, लोगों को समझाएं। जितनी लोगों को ज़्यादा शऊर आएगा उतनी लोगों को ये चीज़ बेहतर समझ आएगी। और लास्ट ये कि इम्प्लीमेंटेशन सख्ती के साथ करें। इसमें मैं पाकिस्तान का ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है इसको दाद देता हूँ। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया इसमें कि इन्होंने ये शो किया कि ये चीज़ जो है मैनेज की जा सकती है। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इतनी आबादी के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी इस तरह नहीं रखा जा सकता। तो लेकिन ये ट्रैफिक कैमरास और स्मार्ट सिस्टम्स यूज़ करके बेहतरी बहुत आई है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वो भी लॉस को खुद फॉलो करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कैमरा लगा होगा या पुलिस का बंदा खड़ा होगा तो ही आपने फॉलो करना है। खुद से भी अपने अंदर आदत डालें कि ट्रैफिक के लॉज को ओबे करें। और अगेन मैं इंटीग्रेशन और सिनर्जी की बात करूंगा। वही 5 मेजर पॉइंट्स के लेजिस्लेटिव को अपडेट करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करें, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को इक्विप करें और लोगों को भी समझाएं ताकि इन्फोर्समेंट बेहतर हो। अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करें, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें। जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हमें उतना ही फ़ायदा होगा। आजकल एआई का दौर है, तो वो डेफिनेटली हमारी हेल्प हेल्प कर सकता है। और बिजनेसेस को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मज़ीद इनकरेज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उन्हें किसी किस्म का इंसेंटिव दें, ताकि उन्हें अलाइन करें इस प्रिंसिपल के ऊपर एटलीस्ट इनिशियली, ताकि उनको इसमें आए कि जी हाँ, हमें थोड़ा सा टैक्स ब्रेक मिल रहा है। भाई टैक्स ब्रेक में ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही टैक्स ब्रेक हो, बट कहने का मतलब ये कि जैसे उनके लिए कोई अवार्ड हो सकता है या कोई छोटी मोटी टैक्स ब्रेक, टैक्स कंसेशन दिया जा सकता है, बट आई वांट टू से लाइक 1-2% इस तरह के, ताकि उनको एक इंसेंटिव मिले। लास्टली मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ पाकिस्तान के उन अदारों का जो सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और अभी हम जिस प्लेटफॉर्म से बात करें पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल, इसके अलावा जो हमारी रेस्क्यू और रिलीफ सर्विस है, रेस्क्यू 1112, एनडीएमए, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, मोटरवे पुलिस, कस्टम सर्विस और डिफेंस सर्विस, जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। कंक्लूड मैं इस बात पे करूंगा कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सेफ्टी जो है वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ना ये अकेली हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना ये अकेली अवाम की जिम्मेदारी है। एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब ने मिलकर इसको ठीक करना है। और इसकी जो सोल्यूशंस हैं उसमें हमें कोलैबोरेशन भी चाहिए और अवेयरनेस भी चाहिए। और लास्टली ये कि इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट हम सेफ्टी में कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है हमारे प्रोग्रेस में, इन्वेस्टमेंट है हमारे फ्यूचर में। ये कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। इसको एक फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए, ये हमारे लिए है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो मोस्ट वेलकम, मुझसे ज़रूर पूछें। अदरवाइज दैट्स द एंड। Mr. Fayaz, Mr. Omar Fayaz, thank you very much for very valuable information you shared with us with the whole forum. आपका ये जो मैंने तो स्पेशली ये वाली फोकस था लास्ट के डाली है ऊपर, जो कैमरा रेगुलेशंस है स्पेसिफिक टू पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और उसमें स्पेशली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2018 में आई थिंक सो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट बना के, यूनानिमस जो सेंट्रलाइज्ड एक्ट है, लाइक ओशा या एचएससी का जो 1974 का एक्ट है यूके का, या बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक दैट,
वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करके आफ्टर ए ग्रेट रिसर्च गवर्नमेंट को दी, बट ये है कि दैट इज इन जस्ट फाइल्स सो फार। और ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रॉब्लम्स आई, जो मतलब सेंट्रलाइजेशन और जो सूबों के दरमियान में जो मतलब क्लैशेस हैं, उसमें देखें ना कि जब आप किसी कोई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप मतलब है कि डाउन टू ग्राउंड आप उसको शेयर करते हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जो आपने सेंट्रलाइज्ड चलानी होती है। हम जितने भी हमारे पास जो केस स्टडीज हैं या एक एग्जांपल्स हैं वेस्ट की, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सेंट्रलाइज्ड है, ऑल्दो दे आर सिग्नाइज्ड इन द डिफरेंट अदर रेगुलेशंस एज वेल। लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज जो है वो आपको एनवायरनमेंट में भी नजर आएंगे, इंजीनियरिंग में भी नजर आएंगे, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी नजर आएंगे। बट ऑब्वियसली आई एम ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस थिंग कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सेंट्रल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ मौजूद होना चाहिए। जैसे कि आप देखें इन्वायरमेंट जो है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री काम कर रही है यहाँ पे, और हम जो अभी 1934 का जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट लेकर बैठे हुए हैं, और उसको भी मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन तो कोई खास नज़र नहीं आती, सिवाय उनके जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो खुद से अपनी मोटिवेशन से खासकर जो एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर बहुत फोकस करती हैं, क्योंकि दे हैव टू गेट इनटू द मार्केट्स ऑफ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। उन्होंने अपने आप को दुनिया की जो बाकी मार्केट्स हैं उनके अंदर अपने आप को इंसर्ट करना होता है। अब लोकली अगर आप सिर्फ अपनी चीज को लेके बैठे रहेंगे, अगर आपने वहीं पे अपने सेल करनी है अपनी प्रोडक्ट, तो आप ज्यादा देर बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते। सो यू हैव टू ओपन द न्यू एवेन्यूज, और जब आप न्यू एवेन्यूज की तरफ जाते हैं तो फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंपटीशन मिलता है, और कंपटीशन में ये जो जितने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हो गए, आपके फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हो गए, आपके वाटर कंजर्वेशन के स्टैंडर्ड्स हो गए, जैसे लीड्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेजेंटेशन हमने अपने कोलीग से इसमें सुनी, बड़ा नॉलेज हमें उससे मिला। इसी तरह जो आपके जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, जो स्पेशली ऑडिटिंग से रिलेटेड है, तो प्रैक्टिसेस आपकी प्रपोजल्स दैट वर एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इफ अगर हम इनको फॉलो करें तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव आवर कंडीशंस। So once again, I say very thankful to you, and not only to you but all the forum and all the participants. I think this was a very wonderful opportunity to all of you. हमने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा है। तो अगर अब मैं लास्ट टाइम सिर्फ अनाउंस करूंगा, इफ एनीवन आउट ऑफ 2 कैंडिडेट्स जो कि स्पीच के लिए हमारे साथ कनेक्टेड थे, एक डॉक्टर साहब हैं और एक आई थिंक सो और साहब हैं, अगर उनमें से कोई अवेलेबल है तो काइंडली आप माइक ओपन करके अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं और विद सम क्लोजिंग रिमार्क्स। और अच्छा जी चलो अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, जाहिद साहब आप जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सबकी अभी मैंने काफी सारी गुफ्तगू सुनी बीच में। अनफॉर्चुनेटली फॉर 10-15 मिनट्स मुझे ऑफ होना पड़ा, बट आई वाज लिसनिंग टू मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड आई हर्ड ऑल द स्पीकर्स। देखिए, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि आई अप्रिशिएट द इंटेंट, आई आई अप्रिशिएट द इंटेंट, आई अप्रिशिएट द एफर्ट, आई अप्रिशिएट द जेस्चर कि 2010 से जिस तरह पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के उन्वान से हम एक जो है एक तहरीक समझ लें इसको चला रहे हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू एक्चुअली इम्प्रूव सेफ्टी सिस्टम इन पाकिस्तान। इट्स नॉट ओनली this organization, there are so many other entities, there are so many individuals, there are so many brands, there are so many people who are actually trying to do. Unfortunately जो है थोड़ा सा मुझे जो एक बड़ा गैप नजर आ रहा है, वो जो अहमद नूरानी भाई ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा, एंड आई अप्रिशिएट दैट, कि जो रिसर्च
एंड डेवलपमेंट का फुकदान है हमारे मुआशरे में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में है, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में है। हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे। हम सब ने जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो कि इसकी मिसाल इस तरह से है कि हाउ मेनी सेफ्टी बुक्स हैव बीन रिटन बाय एनी पाकिस्तानी, HSE बुक्स, जिसके अंदर कोई हम बात करते नजर आए कि गिवन द पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए। देखें, जो नेशनल लेवल पे ये जो ड्राफ्टिंग है डॉक्यूमेंटेशन की, अगर आप बिल्डिंग कोड को भी देखें, अगेन अनफॉर्चुनेटली आई रिस्पेक्ट द एफर्ट, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखें हमें वो चीजें बनानी है जो हमारे लिए हों, जो हमारे मुताबिक हों। हम सडनली वी कैन नॉट जंप इनटू ओशा। जो CFR के स्टैंडर्ड्स अगर आप पढ़ें, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, तो वो इतने ज्यादा हैं कि आपकी सोच है। ISO 21,000 स्टैंडर्ड इशू कर चुका है। हम अभी जो है बहुत ही इन्फेंसी स्टेज पे हैं एज अ कंट्री, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने कंफ्यूजन मचा दी है बिटवीन मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी स्टैंडर्ड्स। जो उसने ASSP की लाइन पकड़ी है या ASP की लाइन पकड़ी है, वो कहता है जी बस CSP है तो वो सेफ्टी ऑफिसर एंड देयर इज नोबडी एल्स हु इज सेफ्टी ऑफिसर। कुछ लोगों ने लाइन पकड़ ली है कि जी अगर इंजीनियर है तो ही कैन बी इनटू सेफ्टी एंड नोबडी एल्स कैन बी इनटू सेफ्टी। नाउ उसके बाद एक बंदे ने लाइन पकड़ ली कि जी नहीं, जो ISO स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो QMS UMS ISO कराता था, वो सेफ्टी को सिर्फ ISO के थ्रू डिफाइन करना चाह रहा है। देयर आर पीपल जो कि NFPA के एक्सपर्ट्स हैं, वो समझते हैं कि NFPA इज सेफ्टी। हमारा प्रॉब्लम अभी तक ये है कि हम स्ट्रक्चर तरीके से, माजरत के साथ, मैंने भी बहुत कोताहियां गलतियां मैं हर रोज सीखता हूं, जिस तरह अहमद नूरानी साहब की, मैं आई सैल्यूट दैट ह्यूमिलिटी विद विच ही वाज स्पीकिंग। ही इज वन ऑफ द जेंटलमैन जिन्होंने पिछले जो है 2 दिहाइयों में, 3 दिहाइयों में बहुत काम किया है पाकिस्तान में सेफ्टी के लिए। और जितने और लोग हैं, कई ऐसे बंदे हैं, इसमें बहुत से यंगस्टर्स हैं जो अभी मेरा ख्याल है 3 साल 4 साल 5 साल वाले भी बहुत ज्यादा हमारी ऑडियंस है इस वक्त, ठीक है। जो सीनियर्स हैं, हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें मीट वाला काम करना है, हमें मेटल वाला काम करना है, METTLE मेटल वाला काम। अभी बहुत बड़ा जर्नी है सेफ्टी में। आई अप्रिशिएट द एफर्ट अगेन। मैं बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लेवल पे अपने एंड से, अपने तई एक इंडिविजुअल की हैसियत से, एक टीम की हैसियत से एफर्ट्स कर रहा हूँ, आप सब भी कर रहे हैं। इन सबको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हम बात करें ये स्टैंडर्ड्स, और सबसे पहले तो कोई हमें सबको मिलके, शायद जो कुछ बड़े हैं सीनियर्स हैं, उनको ये रोल प्ले करना है कि हम एक एक चैप्टर पकड़ लें कि कैसे पाकिस्तान सेफ्टी कल्चर की बुनियाद रखने के लिए हम कोई 12 चैप्टर या 14 चैप्टर की कोई आसान किताब लिखें जो पाकिस्तानियों के लिए हो, यहाँ के मुताबिक हो। उसके अंदर जो थोड़े बहुत फंडामेंटल जो है NFPA से क्लॉजेस या जो है वो हों, लेकिन लबादा पाकिस्तानी हो, यहाँ का लबादा हो, तो फिर शायद हम कोई थोड़ा सा लोगों को सिखा पाएंगे। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, स्टिल आई अप्रिशिएट। तो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड कि आप लोग जो है इसको जारी रखेंगे। ये जो अवार्ड्स वाला पाकिस्तान में एक ड्रामा चला हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, हम सबको मिलके इसको क्वालिटेटिव बनाना है। पैसे दे के 75,000 50,000 जी आ जाए, आप जो है ये ट्रॉफी ले लें, ये ट्रॉफी ले लें, इदारों से हम जो है अपने सेठों को और बाकी लोगों को बना लेते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो प्लीज लेट्स गेट टू द प्रैग्मेटिक सेफ्टी। लेट्स, माय लास्ट लाइन मैसेज इज, we should get away from the cosmetic safety, we should get to the pragmatic safety. Thank you very much. Agreed. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, डॉक्टर साहब, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी थॉट्स के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, तो हम लोग उम्मीद है कि नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होने से पहले हम लोग और मल्टीनेशनल और नेशनल जितने भी स्पीकर्स हैं उनको भी इसमें लेके आए। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग एक तफक्का तौर पर एक एक्टों पर या रेजोल्यूशन के लिए काम करें, जैसे आपने कहा खुद भी कि ऐसे करें कि हम लोग मिलके कोई ना कोई एक चैप्टर पकड़ लें। आई थिंक मुदस्सिर साहब को इस बात का पता है कि हमारी 1 साल पहले इस बात पे बात हुई थी कि हम लोग ने स्टैंडर्ड पे काम करना है। मुदस्सिर साहब इस बात की गवाह होंगे, और सेम आपने भी यही बात की आज, तो मैं बड़ा खुश हूँ।
और मैं पुरुमीद हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाल्लाह हम लोग बैठेंगे और इस पर काम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए करना है, डेफिनेटली हमने पाकिस्तान के लिए ही करना है और हमें इंटरनेशनल लॉबीज को या इंटरनेशनल लोगों को खुश करने के लिए नहीं करना, हमने अपने पाकिस्तान के लिए करना है। थैंक यू। So nice of you to all of the participants. और कोई बात करना चाह रहा है? मिस्टर असदुल्लाह, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं बात करना चाह रहा हूँ जी यहाँ पे। Sure, please. आई रियली please. अप्रिशिएट ऑल ऑफ द टीम। यहाँ पे जितने भी अहबाब ने बात की, खसूसन जो हमारे इख्तितामी कलमात थे, जाहिर साहब आई रियली अप्रिशिएट दैट कि ये बहुत बड़ा आपने एक मैसेज दिया है। हैरत होती है टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम लोग बाकी दीगर कंट्रीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं अपना, हम लोग यानी मैं अगर ऑफशोर फील्ड में हूँ एज HSE मैनेजर, प्रोजेक्ट HSE मैनेजर के तौर पे, तो जब हम फील्ड में देखते हैं तो हमारा पाकिस्तानी कोई बंदा वहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से कुछ पढ़ के आते ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पढ़ा, फिर आगे आगे हम लोग दीगर यूनिवर्सिटी से फिर ट्राई, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी बंदे आते हैं, मेरे पर बहुत सारे बंदे आते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, किसी ने मास्टर्स किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, जी सर हमें जॉब नहीं मिल रही, किसी तरीके से हम एडजस्ट करवाएं। अब उनको किसी बात का आइडिया नहीं होता। मैं आई एग्री ऑन दैट वन कि मैं खुद यानी यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए 14 साल हो गए अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये कि हमारा कोई ऐसा इदारा नहीं है, इवन दो DAE सिविल जो करके बेचारे आते हैं, ये मैकेनिकल या कहीं पे भी, उनको बेसिक डेफिनेशन का नहीं पता होता। और हत्ता कि हमारी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी सेफ्टी को एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया जाता। यानी सबसे बड़ी दुख की बात यह है। और इंडिया में ये उस पे PhD तक के थीसिस लिखे जा रहे होते हैं। अभी मैंने अपने थीसिस लिखने थे इसके लिए स्पेनिश यूनिवर्सिटी के, तो मुझे कोई और सपोर्ट पाकिस्तान से नहीं मिले। मुझे UET कराची की एक आध कुछ मिले, और उसके बाद फिर NET यूनिवर्सिटी के कुछ मुझे मिले। बाकी मैंने कुछ इंडियंस का लिया, हालांकि जो मैंने टॉपिक लिया था वो मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड लिया था, लेकिन मुझे पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज मिली नहीं। आता कि हमारे पास बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम है, लेकिन किसी में कुछ ऐसा काम हुआ ही नहीं ऑन सेफ्टी। अगर हम लोग उसको यानी जिस तरीके से ये एक आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, बाय गॉड से हम में से हर बंदा डिफरेंट एरियाज का है। अगर हम में से हर बंदा अपने अपने एरियाज में थोड़ा बहुत काम कर दे, ताकि हम लोग स्कूल्स के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं। वहां पे जाके थोड़ा बहुत उनको आगाही दे सकते हैं। कभी बंदा किया किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, स्कूल में चला गया, असेंबली पॉइंट जो होता है, जब हम लोग वहां पे असेंबली करते हैं सुबह सुबह, वहां पे प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की कि सर आई नीड ओनली 10 मिनट्स। यानी हम लोग सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं, बाहर के मुल्कों से हम लोग जब काम करते हैं, या पाकिस्तान में हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम में से हर बंदा जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जानता है, प्रोफेसर को जानता है, हेडमास्टर को जानता है, जहाँ पे हम लोग खुद पढ़े हैं। कम से कम मतलब वही चला जाए, वहां से इस बात को जो है आगे लेके चले। आई होप सो कि यानी एक आगाज हो जाएगा तो एक बहुत बेहतरीन आगे सिनेरियो चलेगा। अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सीडेंट की बात हो रही थी, दैट वाज नॉट अ एक्सीडेंट, वो एक कमिटेड क्राइम था जो कराची में हुआ था, जो फैक्ट्री में आग लगी थी, वो तो एक लगाई गई थी, लेकिन ये है कि उसके तमाम के तमाम एग्जिट रूट्स जो है वो बंद कर दिए गए थे। और इसी तरीके से इंडिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था भोपाल में, तो उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल जो है वो मर गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी अपनी इंडस्ट्री में चेंजिंग की। और जाहिर साहब आई रियली अप्रिशिएट कि आपने कहा कि ओशा हम डायरेक्टली नहीं ला सकते, जब हमें यानी एक प्याज खाने के हमारे पास पैसे नहीं है, और मैं कहूँ जी बकरा लेके आए, कहां से लेके आऊं भाई? कुछ तो हमें बेसिक नॉलेज तो हो। मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था, मैं आई एग्री ऑन दैट, मैं इस बात को यानी एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा ये शुबा नहीं था जब मैं यहाँ पे आया था। मैं एक लॉयर था, और कुछ केसेस की वजह से फिर मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। जब मैं यहाँ पे आया था, मुझे ये नहीं पता था कि PPE किसको कहते हैं। मैं इस चीज को तस्लीम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये एक पढ़ा लिखा बंदा जो होता है वो उसको यानी वो अंडरस्टैंड जल्दी करता है, वो पिक जल्दी करता है, वो आगे फिर उसको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो फिर आगे बढ़ता है। लेकिन ये कि मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं कोई
सिल्वर स्पून में से मेरे ख्याल में शायद हमें से मैक्सिमम पीपल सिल्वर स्पून के साथ नहीं आए, गोल्डन स्पून के साथ नहीं आए। हम लोग अपनी मेहनत के बलबूते पे आए हैं। हम में से मेरे ख्याल में, शायद मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोग पढ़ने के लिए जी हमने रोड पे भी काम किया है, फैक्ट्रीज में भी काम किया है, चने भी बेचे। मैं एग्री करता हूँ इस बात, लेकिन ये कि अगर हम लोग अपनी आने वाली नस्ल को कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे, उनको बता देंगे कि यार खुदारा इस रस्मी तालीम से थोड़ा निकलो और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ पे आओ। अगर हम लोग ये बातें उनको समझाना शुरू कर देंगे, और खासूसन ये जो हमारी फील्ड है, ये इतनी वास्ट फील्ड है कि जिसमें आपको हर शोबा को पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एनवायरमेंट, इवन एवरीथिंग यू हैव टू लर्न अबाउट दैट। लेकिन जी ये कि बिल्कुल बाकी फीकर में है सिविल वाला मिस्टर ही राणा बात करेगा। बात फाखर लंबी हो रही अब्बास है, जी। सिर्फ इतनी बात होगी कि अगेन एंड अगेन आई रियली अप्रिशिएट दैट, और इसको हमें कंटिन्यू करना है। मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम मंथली एक हमारा सेशन होना चाहिए। बाकी आप लोग सो नाइस बेहतर ऑफ यू, समझते हैं। ग्रेटफुल। आपकी जो थॉट्स हैं, मैं उसको अगर एक सम अप करूं तो आई कैन से कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें सेफ्टी की तबलीग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब इस आई एग्री। स्पिरिट के साथ हमें इसको करना चाहिए टू दी एवरी पार्ट ऑफ दी एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के यहाँ जहाँ तक लोगों को ये थॉट्स जो है वो पहुंचे। और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमें उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि लोगों को सिर्फ नॉलेज ही ना हो सेफ्टी का, बल्कि उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने की भी प्रैक्टिस हो। उनको पता हो कि in case of any emergency what we have to do, what steps we have to do। और मिस्टर जाहिद, डॉक्टर जाहिद साहब का जो बात थी, दैट वाज वंडरफुल कि जो हम मतलब व्हाई वी आर मिसिंग थ्रू दी डॉट्स, हम मिसिंग कहाँ पे हैं, हालांकि हमारे अंदर विश भी है, वी वांट टू इम्प्रूव दी सिचुएशंस, हम कंसर्न है, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं ना, वी हैव थॉट्स कि हम यहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं, हम बाकी सारी चीजों से हट के मैं ये एक काम लाइन, कर रहे हैं। मुदस्सिर भाई मैं एक लाइन शेयर कर दूं आपके साथ, सिर्फ कि मैं इस वक्त जो चीज आपसे शेयर नहीं की फोरम के साथ बता दूं कि 130 स्कूल और कॉलेजेस हैं फौजी फाउंडेशन के, और उनके कोई 400 के करीब प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद 80 के करीब हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स हैं। तो मैं इन तमाम के जो थिंक टैंक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनको एक ट्रेनिंग साइकिल रन कर रहा हूं 4 दिन की ईच पर्सन। वो ट्रेनिंग साइकिल में मैंने 500 लोगों को ट्रेन करना है अगले 4 महीने में टू इम्प्लीमेंट HSE मैनेजमेंट सिस्टम इन 130 स्कूल्स, कॉलेजेस एंड 80 हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। तो आई वॉज सो बिजी कि मंडे से मेरा अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि सेकंड सेशन है इन फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी, और उसमें जो है 40 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं। तो टोटल जो है मैंने 500 लोगों को ट्रेनिंग करानी है नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो आई हैव स्टार्टेड इंजेक्टिंग दिस HSE मैनेजमेंट सिस्टम इनटू द एजुकेशन सेटअप्स, इनटू द हॉस्पिटल्स, आफ्टर डूइंग इट इन द इंडस्ट्री। तो पैरेलल चीजें हम लोग सब कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहीं जिक्र नहीं किया क्योंकि अभी ये बात हुई है, तो मैं जस्ट शेयर ये कर रहा हूँ। इट्स अ मैमथ एक्सरसाइज, हुंजा से लेके कराची तक। आई एम ट्राइंग टू सेल सेफ्टी इन एवरी इंस्टीट्यूशन जो है। और अब जो है मुझे प्राइवेट सेक्टर से स्कूलों ने राब्ता शुरू कर दिया है कि जी सर आप इधर ये सिस्टम हमें भी इंट्रोड्यूस, और टेलर मेड बनाया है, कोई मैंने साइंस नहीं, मुझे मेहनत करनी पड़ी, 6 महीने लगे ये ट्रेनिंग बनाने के लिए कि व्हाट सेफ्टी सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तानी स्कूल्स और उसमें, और इसी तरह हॉस्पिटल्स में क्या चाहिए। तो मैंने टेलर मेड बनाया, कोई गूगल नहीं है, कोई AI नहीं है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लेके चलता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल ऑन ट्रैक, वी आर ऑल मेकिंग मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इंशाल्लाह ताला द डे इज नॉट फार व्हेन पाकिस्तान विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट सर, सो नाइस ऑफ यू। बिल्कुल मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ आपसे, और आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ जो आपने एफर्ट्स का यहाँ पे मतलब एक अलम बलंद किया है। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब टू सर्व द नेशन, और मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, कमेंडेबल, एक्सीलेंट। और आई थिंक एवरीवन शुड
appreciate this. And we are praying to God कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और maximum results आपको achieve हो what you have in your mind that you want to get out of the people के आप ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग इस तरह करें कि वो मैक्सिमम उसको प्रैक्टिस करें ऑन ग्राउंड और उससे जाहिर है जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तो रिजल्ट भी उसके आएंगे इंशाल्लाह ताला एंड ऑल क्रेडिट्स will go to you inshallah. Thank you very much. So gentlemen, nice of you for this valuable thoughts and everything. Now I think we should move towards the closing. And as we conclude this significant international safety conference, I would like to take a moment to reflect on the invaluable insights we have shared today. We have listened to a diverse range of speakers who have deepened our understanding of the intricate relationships between health, safety, and environmental sustainability. Each presentation emphasized the critical importance of fostering a safety culture that not only protects our workers, but also safeguards our environment. The knowledge exchanged have served a guideline urging us to adopt practices जो कि बात कर रहे थे हम लोग that prioritize the well-being of every individual and our shared planet. I extend our heartfelt gratitude to the Pakistan Safety Council for organizing this important conference and to all the speakers for their enlightening contributions. Thank you to each participant for your engagement and dedication to advancing health, safety, and environmental stewardship. As we move forward, let us carry the insights and knowledge gained today back to our organizations and communities. Together, we can implement change and advocate for a safer, healthier, and more sustainable future. We hope you leave inspired and empowered, ready to make a tangible impact in your respective fields. We look forward to seeing you at our future events, inshallah. Thank you very much, gentlemen. Inshallah. Thank you very much. Thank you very much. Good night to all of you, and meet you inshallah in any event we will organize. And आपके जो knowledge है उससे इंशाल्लाह और भी फायदा उठाएंगे हम लोग. Great That's of you. great. Thank you. That's great. Allah Hafiz. And Pakistan Zindabad. Pakistan Sure, Zindabad. Pakistan Zindabad. Yes. Thank you very much Thank because you. our slogan is this. So thank you very much for all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much for all.